جمعرات کی شام تلنگانہ کے سداشیوپیٹ منڈل کے آسریت آباد میں ایک کسان کی 21 بکریاں آسمانی بجلی گرنے سے ہلاک ہو گئی۔ بتایا گیا ہے کہ کسان بلرام لچھیا آسریت آباد کے مضافات میں اپنی بکریاں چروا رہا تھا۔ اس علاقے میں گرج چمک کے ساتھ تیز بارش شروع ہو گئی، جس کے بعد کسان اور بکریوں نے درخت کے نیچے پناہ لی ہوئی تھی۔ اس دوران بکریوں پر آسمانی بجلی گرنے سے 21 بکریاں موقع پر ہی جاں بحق ہو گئی۔ خوش قسمتی سے کسان جو صرف چند میٹر کے فاصلے پر کھڑا تھا بال بچ گیا۔ کسان نے بتایا ہے کہ اسے تقریباً 4 لاکھ روپے کا نقصان ہوا ہے۔ ضلعی افسر برائے اقلیتی بہبود کریم نگر پی پون کمار کی اطلاع کے مطابق راجیو یووا اسکیم کی آخری تاریخ میں 14 اپریل تک توسیع کر دی گئی۔ حکومت کی جانب سے SC, ST, BC, مائنورٹی اور EBC, EWS طبقات سے تعلق رکھنے والے بے روزگار نوجوانوں کو خود مکتفی بنانے کے مقصد سے راجیو یووا اسکیم متعارف کی گئی ہے۔ اس اسکیم سے استفادہ کے خواہش مند اقلیتی طبقہ یعنی کہ مسلم، عیسائی، سکھ، بدھ، پارسی اور جین مت سے تعلق رکھنے والے بے روزگار نوجوانوں کو رعایتی قرض جات فراہم کیے جائیں گے، جس کے طریقہ کار کچھ الگ الگ بتائے جاتے ہیں۔ ضلع منشیال بھر میں غیر موسمی بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ دھوپ کی توازن سے عوام کو کچھ راحت ملی۔ ظہیر آباد مفتی عبدالصبور قاسمی، مولانا مجیب قاسمی، سیف الدین غوری، صدر ہری مسجد کمیٹی سید اشفاق خانی نے میڈیا سے بات کی اور بتایا کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی ہری مسجد محلہ گڑھی ظہیر آباد میں عازمین حج کا ایک روزہ تربیتی کیمپ کا 5 اپریل بروز ہفتہ بوقت صبح 10 بجے تا نماز اثر بمقام ہری مسجد محلہ گڑھی ظہیر آباد میں ضلع سطح کا عظیم الشان حج عمرہ تربیتی کیمپ منعقد ہو رہا ہے، جس کی صدارت جناب سیف الدین غوری سیف صاحب صدر ہری مسجد ظہیر آباد فرمائیں گے۔ محکمہ BSNL ریٹائرڈ پینشنر ملازمین نے مرکزی حکومت کے پینشن مخالف پالیسیوں کے خلاف جگتیال ہیڈ کوارٹر BSNL آفس ٹیلی فون ایکسچینج جگتیال کے سامنے ریٹائرڈ پینشنرز نے مرکزی حکومت کے خلاف احتجاجی دھرنا دیا اور کہا پینشنرز ترمیمی بل جو کہ 2025 کے بجٹ میں مرکزی حکومت نے دونوں ایوانوں میں پیش کیا پینشنرز ملازمین اساتذہ کے لیے خطرناک ہے اور وہ BSNL کے ریٹائرڈ ملازمین کی حیثیت سے مرکزی حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اسے فوری طور پر واپس لیا جائے۔ باریک چاول کی تقسیم صاف اور شفاف ہونی چاہیے۔ ہنم کنڈا ضلع کلکٹر پی پروانیہ نے کہا راشن شاپس کے ذریعے استفادہ کنندگان میں باریک چاول کی تقسیم کا عمل آسانی سے ہونا چاہیے۔ ہنم کنڈا ضلع کلکٹر نے ہنم کنڈا ضلع کے دمیرا منڈل سینٹر میں آج راشن شاپس کا دورہ کیا، مستحقین میں باریک عمدہ چاول بھی تقسیم کیے۔ ضلع کے بیاسی آباد کے سپو ٹاؤن میں آج MLC نے اپنے ہمراہ سب کلکٹر اور شردا شکلا منڈل اسپیشل آفیسر اور تحصیلدار نواس MPDO ستیہ نارائن محمد سہیل احمد کے علاوہ سیاسی قائدین کے ساتھ مل کر MLC ڈنڈے وٹھل حکومت کی جانب سے شروع کردہ باریک چاول کی اسکیم کا افتتاح انجام دیا۔ جگتیال ضلع دفتر برائے محکمہ اقلیتی بہبود ضلع آفس عارف چتر نے اپنے بیان میں بتایا کہ راجیو یووا وکاسم اسکیم آن لائن ادخال کی تاریخ میں 14 اپریل تک توسیع کر دی گئی ہے۔ حکومت نے راجیو یووا اوکاسم اسکیم پر عمل آوری کے رہنمانہ خطوط جاری کر دیے ہیں۔ اس اسکیم کے تحت جگتیال کو بے روزگار نوجوان سے آن لائن درخواست داخل کرنے کی خواہش کی جاتی ہے۔ تیماپور منڈل میں جے باپو جے بھیم جے سنویدھن پد یاترا میں سراج حسین DCC جنرل سیکریٹری اور جے باپو جے بھیم جے سنویدھن پروگرام کے کوارڈینیٹر منڈل نے سبھی پر زور دیا کہ وہ ہندوستانی آئین کی حفاظت کے لیے مل کر کام کریں جو کہ ڈاکٹر BR امبیڈکر کے ذریعے لکھے گئے۔ مرکزی حکومت نے اس آئین کو کسی نہ کسی طرح مداخلت کر کے تبدیلی کی کوشش کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا ہر ایک کو دستور کی حفاظت کے لیے خود کو تیار کرنا ہوگا اور BJP کے رہنما جو ہندوستانی آئین کے بارے میں نامناسب تبصرے کرتے ہیں ان کی نامناسب باتوں پر بھی غور کرنا ہوگا۔ ضلع کے بیاسی آباد کے کاغذ نگر کے ساکن شیخ احمد گزشتہ کچھ دنوں سے گردے کے مرض میں مبتلا رہتے حیدرآباد میں زیر علاج تھے۔ انہوں نے مزید علاج کی رقم کی منظوری کے لیے مقامی رکن اسمبلی ڈاکٹر پی ہریش راؤ سے نمائندگی کرنے پر رکن اسمبلی ڈاکٹر پی ہریش راؤ نے حکومت سے نمائندگی کرتے ہوئے شیخ احمد کو مزید علاج کے لیے 75,000 روپیوں کی منظوری کرواتے ہوئے آج رکن اسمبلی کے PA کے ذریعے شیخ احمد کو 75,000 روپے کا LO کے حوالے کی گئی۔
सर्कल इंस्पेक्टर पुलिस बोधन वेंकट नारायण के मुताबिक 12 साल साहिल खान मुतवतिन बोधन गुज़िश्ता मंगल के रोज सुबह 9 बजे घर से साइकिल लेकर रवाना हुए, लेकिन रात देर गए तक भी घर न लौटने पर दूसरे रोज 4 शुंबे को साहिल खान के अजीजो खारिब ने बोधन पुलिस स्टेशन पहुंचकर साहिल खान की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवाई। सर्कल इंस्पेक्टर बोधन ने अवामुन्नास से इस गुमशुदा लड़के के ताल्लुक से किसी शख्स के पास कोई इत्तला हो तो फौरी बोधन पुलिस स्टेशन को इत्तला देने की ख्वाहिश की है। आज एलआरडी के मंडल लिंगमपेट में मंडल माइनॉरिटी सेल सदर की हैसियत से मोहम्मद अफरोज को बिला मुकाबला मुंतखब कर लिया गया है। इसी तरह टाउन माइनॉरिटी सदर के लिए इरफान का इंतखाब में आया। इस मौके पर अफरोज ने रुकन असेंबली मदन मोहन राव से इज़हार तशक्कुर करते हुए पार्टी को मंडल में मजीद मुस्तहकम करने के इरादे का इजहार किया। दस्तूर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तेलंगाना में सदर प्रदेश कांग्रेस महेश कुमार की हिदायत पर चलाई जा रही मुहिम का आज टाउन सदर कांग्रेस शेख मोहिउद्दीन पाशा की क़यादत में आगाज अमल में आया। आज सुबह 8 बजे कांग्रेस पार्टी बोधन के सीनियर कायदीन सरगर्म कारकुनों की कसी तादाद ने बोधन के बल्दी हल्के नंबर 1 में वाक़े अम्बेडकर मुजस्सिमे के करीब जमा होकर जय भीम, जय बापू, जय संविधान के नारे लगाए और दस्तूर हिंद के तहफ़्फ़ुज़ करने का हलफ लिया। बादशाह कांग्रेस पार्टी कायदीन और सरगर्म कारकुनों पर मुश्तमिल टीम ने बल्दी हल्के नंबर 1 मोहल्ला अचनपली के घर घर घूमकर दस्तूर हिंद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए चलाई जा रही मुहिम में हिस्सा लेने अवाम को तरगीब दी। इस मुहिम में साबिक़ चेयरमैन बल्दिया बोधन एलम, साबिक़ अरकान बल्दिया सैयद मकसूद पाशा, दामोर रेड्डी, शरत रेड्डी, अब्दुल्ला, भद्रावचारी वगैरह ने भी हिस्सा लिया। बोधन के बल्दी हल्के नंबर 28 में वाक़ तकरीबन 200 साला मुस्लिम खदीम क़ब्रिस्तान के अराज़ी पर बास फ़िरक़ा परस्ताख़ते क़ब्रिस्तान की फाजिल अराज़ी पर मुनज़्ज़म तरीक़े पर कब्ज़ा करने की कोशिश में है। इसी इलाक़े से ताल्लुक़ रखने वाले मुक़ामी मुसलमानों ने फ़िरक़ा परस्ताख़तों के नाजायज़ अज़ाज़ से वाकिफ़ करने वाले सब कलेक्टर बोधन से मुलाकात की, तहरीर याददाश्त भी हवाले की। मजीद खान खादी ने सियासत न्यूज़ बोधन से मुलाकात करके बताया कि बाद गैर मजाज अफराद इस खदीम मुस्लिम क़ब्रिस्तानों के करीब एक मंदिर को वजूद मिलाकर मुस्लिम क़ब्रिस्तान की अराज़ी पर नाजायज़ कब्ज़ा करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। एलआरडी के मंडल लिंगमपेट कांग्रेस पार्टी रियासती माइनॉरिटी सेल नायब सदर मोहम्मद फतेहुद्दीन ने अपने सहाफ़ती बयान में कहा कि राहुल गांधी के अहकाम पर रियासती वज़ीर आला रेवंत रेड्डी तेलंगाना गरीब खानदानों को जारिया माह से राशन शॉप्स पर बारीक चावल सरबराह करके रियासती गरीबों का भी मुकम्मल ख्याल किया है, जो किसी कारनामा से कम नहीं। फतेहुद्दीन ने वज़ीर आला और रुकन असेंबली मदन मोहन राव से भी इज़हार तशक्कुर किया। 10 माह बाद हकीकी बाप का कातिल बेटा और बहू लाई डिटेक्टर पॉलीग्राफ टेस्ट के जरिए पकड़े गए। कत्ल के जुर्म का इतराफ करने पर इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके अदालत में भेज दिया गया। जगतियाल डीएसपी रघुचंद्र की अपनी चैम्बर में मुनक़्क़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंकशाफ किया। 14 जून 2024 को जिले जगतियाल के रोलावागू मौजू के करीब बीरपुर मौजू के मज़ाफ़ात में एक नामालूम शख्स को पेट्रोल डालकर जला दिया गया था। उस वक्त बीरपुर पंचायत सेक्रेटरी पी चिन्ना नरसैया ने बीरपुर बेशर्म की शिकायत पर मुकदमा दर्ज करते हुए पुलिस ने तहकीकात की। शुबे की बुनियाद पर मुतवफ़ी के अफराद खानदान में इसके छोटे बेटे साई कुमार, उसकी बीवी अरुणा को मुतवफ़ी की नाश दिखाने पर नाश अपने बाप के होने से साफ इनकार कर दिया और लावारिस लाश के तौर पर छोड़ दिया, जिसके बाद मुतवफ़ी की हड्डियां डीएनए टेस्ट के लिए FSL हैदराबाद भेजी गई थी। मुतवफ़ी की शिनाख्त लक्ष्मी नारायण के तौर पर की गई। वालिद का नाम राजा, उम्र 55 साल, नरसिमुल पल्ली गाँव का रहने वाला था। एलआरडी मंडल के लिंगमपेट में बारीक चावल की स्कीम के आगाज पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और रुकन असेंबली मदन मोहन राव की तस्वीर को दूध से नहलाया गया। जिले के बियासियाबाद के सिरपुर टाउन की ग्राम पंचायत के करीब मौजूद राशन शॉप में आज एमपीडी सत्या नारायण ने अपने हमरा ग्राम पंचायत सेक्रेटरी तिरुपति, राशन शॉप लीडर प्रकाश के साथ मिलकर गरीब मुस्तहिकीन में बारीक चावल स्कीम का इफ्तिताह किया। एलआरडी एमपीडी प्रकाश ने आज मौसम गर्मा की आमद के पेश नजर मलकापल्ली ग्राम पंचायत में परिंदों की तशनगी दूर करने के गसे प्लास्टिक बोतलों को कट कर दे इसमें पानी भरा और परिंदों के लिए दरख्तों की शाखों पर लटका दिया गया, जिससे शिद्दत की धूप में परिंदों को अपनी प्यास बुझाने में आसानी रहेगी। एमपीडी प्रकाश की इस पहल से बेजुबान परिंदों को पानी दस्तयाब रहेगा, जो किसी बड़े कार्य खैर से कम नहीं। एलआरडी के मंडल लिंगमपेट में कांग्रेस पार्टी ऑफिस पर युवजना कांग्रेस सदस्य की हैसियत से नामजद किए गए रामा कृष्णा गौड़ को मंडल पार्टी सद नारा गौड़, वर्किंग प्रेसिडेंट दशरथ नायक, टाउन सद प्रसाद गौड़, अशोक यादुल्ला, सलीम मधार पाशा और दीगर ने मुबारकबादी पेश की। जय बापू, जय भीम, जय संविधान प्रोग्राम के तहत जिले प्रचार कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद जावेद अकरम की सदारत में कोटगी मंडल के अथंडा देहात में प्रोग्राम को अंजाम दिया गया। इस मौके पर मोहम्मद जावेद अकरम ने बताया कि कोटगी मंडल सदस्य शाहिद हुसैन की सदारत में प्रोग्राम अंजाम दिया जा रहा है।
राजन्ना सिलसिला जिले के गंभीरापेट में सदनशीन तेलंगाना वक्फ बोर्ड सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी के हाथों से आरिफ फर्नीचर कम होम नीड शोरूम का शानदार इफ्तिताह अमल में आ गया। इस मौके पर अजमतुल्लाह हुसैनी ने शोरूम के मालिक मोहम्मद आरिफुद्दीन और इनके साहिबजादान मोहम्मद अनवर और मोहम्मद जावेद को फर्नीचर शोरूम के क़याम पर मुबारकबादी भी पेश की। कांग्रेस हुकूमत की जानिब से राशन की दुकानात पर बारीक चावल की मुफ्त सरबराही स्कीम का वार्ड नंबर 24 में साबिक काउंसिलर बल्दिया मोहम्मद यूनुस के नरसिमरुद सदर टाउन कांग्रेस पार्टी के हाथों इफ्तिताह अमल में आया। मोहम्मद यूनुस साबिक काउंसिलर बल्दिया ने खिताब करते हुए कहा कि रियासती हुकूमत ने अवाम से किए गए वादों की तकमील की है। जगतियाल में रीजनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर पोलास में शुमारी तेलंगाना मंडल एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एक्सटेंशन एडवाइजरी कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ। 2 रोज़ा प्रोग्राम के पहले दिन का आगाज हुआ। इस प्रोग्राम में जिले एडिशनल कलेक्टर BS सत्ता ने शिरकत की और कहा अगर किसान अप्रैल के पहले हफ्ते में धान की फसल काश्त करने का इरादा रखते हैं तो वो कपास का फीसद कम कर सकते हैं और बरामद की तरजीह में इजाफा कर सकते हैं। नई टेक्नोलॉजी को अपनाते हुए चावल, मकई, कपास, तिल, सोयाबीन और मूंगफली की पैदावार बढ़ाने की तजवीज दी गई है। अलहाज अब्दुर्रहमान मालिक मदीना होटल की रिहाइशगाह पर कल रात ईद मिलाप तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें निर्मल की मुअज़्ज़िज़ शख्सियतों के अलावा निज़ामाबाद से इनके दोस्त और अहबाब ने शिरकत की। इस मौके पर अनीस अहमद खान सीनियर कांग्रेसी कायद ने कहा ऐसी महफिलों से आपस में खुलूस और मोहब्बत परवान चढ़ती है क्योंकि दोस्ती बहुत बड़ी नेमत है। इस नेमत से इनकार नहीं किया जा सकता कि आंधी हमारे बस में नहीं मगर चिराग जलाना तो इख्तियार में है। अब्दुर्रहमान मालिक मदीना होटल को दिल की गहराई से मुबारकबादी पेश करता हूँ। उन्होंने अपनी तकरीब मुनक्किद करते हुए दोस्त अहबाब को एक जगह जमा होने का मौका दिया। इस तकरीब में निज़ामाबाद से आए हुए मेहमान M.A. फ़हीम, साबिक डिप्टी मेयर सैयद नजीब अली, सीनियर कांग्रेसी कायद अशफाक अहमद पापा ने, मुजाहिद खान साबिक कॉर्पोरेटर निर्मल, मोहम्मद जाहिद अली मालिक IA फंक्शन हॉल, मोहम्मद ईशान अली हरकती कांग्रेसी कायद के अलावा सीनियर सहाफ़ी सैयद जलील अज़हर, स्टाफ रिपोर्टर रोज़नामा सियासत भी मौजूद थे, जबकि M.A. हसीब ने तमाम मेहमानों का खैर मकदम किया।